حسین یہ بتا رہے تھے شب عاشور کہ دیکھو میرے نانا کے ساتھ جنت جانے والے زیادہ تھے. میں یوں ہی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، جنگ خندق ہوئی نا اسلام کی. رسول اللہ نے کہا آج جو سب سے پہلے فتح خندق کی یعنی خندق کی جیت کی فتح کی خبر لے کر کے آئے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دوڑ گئے جنت کے نام پر، بہت سارے لوگ دوڑ گئے، لیکن حسین رات کو کہہ رہے ہیں شب عاشور کہ جس کو جانا ہے چلا جائے. کوئی نہ گیا. پھر حسین جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. پھر بھی کوئی نہ گیا. پھر اندھیرے میں حسین کی آواز گونجی عاشور کی رات کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت نہ جاؤ گے، حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو جاؤ، میں تم سب کے جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. میں کہوں گا مولا حسین آپ جنت کی ضمانت کیسے دینے لگ گئے؟ کہا میرے نانا سے نہیں سنا کہ میرے نانا نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا لال حسن میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو حسین سردار جوانان جنت ہے، اور اپنی سرداری کا ثبوت دیا ہے حسین نے کہ جنت میں جس کی حکومت ہے، جنت پر جس کا رائٹ ہے، جنت پر جس کا حق ہے. عید کی رات اپنی ماں سے مچل کے کہا اماں عرب کے بچے نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس لباس نہیں ہے. حسین کی ماں فاطمہ نے رسول کی زندگی میں یہ کہا میرے بچوں سو جاؤ، صبح درزی کپڑے لے کر آئے گا. ماں نے یہ کہا ساری تاریخیں لکھتی ہیں، سارے مورخین نے حدیثوں تک میں یہ بات محفوظ ہے، راویوں نے بیان کی ہے کہ صبح کو دروازے پر دستک ہوئی، بیل بجی، کنڈی کھٹکھٹائی گئی، اور اتنے میں اندر سے پوچھا گیا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، حسن و حسین کا درزی ہوں. آنے والا جو درزی بن کر آیا سب یہ مانتے ہیں کہ جنت کا داروغہ تھا. اللہ اللہ، کیا اب اس سے بھی دنیا اندازہ نہیں کرتی کہ جہاں انسان کی حکومت ہوتی ہے وہاں سے سامان منگا لیتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میرے گھر چلے گئے، کوئی سامان ایسا جو میری ملکیت ہو آپ بغیر انفارمیشن کے نہیں لا سکتے. لیکن اگر میں آپ کو بھیجوں اور اپنے گھر کہوں کہ جائیے مولانا نے کہا ہے فلاں سامان فلاں جگہ رکھا ہے وہ لے کے چلے آئیں، تو فوراً آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. آپ کو پہلے کیوں نہیں ملا؟ میرے کہنے پہ کیوں ملا؟ تو سامنے والے انسان نے کہا گھر آپ کا ہے، مالکیت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، جگہ آپ کو پتا ہے، کوڈ آپ کو پتا ہے، رکھا آپ نے ہے، آپ نہ منگوائیں گے تو ہم منگوائیں گے. پر یہی فرق ہے امتیوں میں اور آل محمد میں. امتی جنت جانے والے ہیں اور حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنت کے کپڑے منگا کے پہنے. مگر وہی حسین جب کہہ رہا ہے جاؤ میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، تو کہنے والے صحابیوں نے حسین کے کہا یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، جب جنت کے جوانوں کا سردار ہمارے پاس کھڑا ہے تو جہاں سرداری جوانان جنت ہے وہی ہماری جنت ہے. ہم اس کے علاوہ کیا جانے کہ جنت کیا ہے؟ جب آپ یہاں کھڑے ہیں یہاں تشریف فرمائے، آقا ہم نہ جائیں گے، مولا ہم نہ جائیں گے. کوئی نہ گیا. عاشور کا دن آیا، ہر ایک نے اپنی جانیں قربان کی. آپ جانتے ہیں صحابیوں نے کیا کہا؟ کوئی صحابی کسی صحابی سے کہتا ہے زہیر غین مسلم ابن اسجا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بھیا مسلم ابن اسجا اگر ہمارے ہوتے ہوئے حسین کے کسی بچے پہ کوئی آنچ آ گئی تو ہم رسول اللہ کو محشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا ہماری زندگی میں کوئی حسین کا بچہ نہ جانے پائے. اور ادھر علی اکبر عباس گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جوانوں کے ہوتے ہوئے اگر بابا کا کوئی دوست چلا گیا ہے تو دوستی بے حرف آ جائے گا. ہر ایک کے پاس جذبہ، ہر ایک کے پاس جذبہ. امتیوں نے اپنا کام کیا کہ پڑھ پڑھ کے سب سے پہلے خراج دیا. کبھی حبیب کا لاشا حسین نے اٹھایا، کبھی زہیر کا لاشا حسین نے اٹھایا. مگر عزادارو، اصحاب حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی زندگانی ہوتے ہوئے حسین کے کسی بچے پہ آنچ نہیں آنے دیا. ہاں عزادارو
उठाने पड़े, कभी अपने कड़िए जवान के कलेजे से बर्छी का फल निकालना पड़ा। आज़ादारों, इंतहाई जुल्म यही नहीं हुई, बल्कि 6 महीने का बच्चा आज़ादारों जिसके गले पे हुरमुला का तीर लगा, मुझे नहीं पता कि उसके गले से क्या निकला। अरे जो दूध पीने वाला बच्चा हो, शायद उसकी गर्दन से माँ का दूध निकला हो, मगर अली असगर कहेंगे दूध न ढूंढना, 3 दिनों से मेरी माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अल्लाह ने ईमान, ये करबला है। और एक लम्हा वो आया कि जब कोई न रहा, हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान कर चुके, तो रवायत कहती है कि हुसैन खुद मैदान में आए और मैदान में आन करके एक एक सहाबी, एक एक सहाब के मजमे की तरफ इशारा करके कहता है, ना फुरसान है जा, मेरे शेरों तुम कहाँ सो गए, तुम्हारे आका की जंग देखो, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। ये कह के हुसैन ने जो हमला किया है तो फौजें दारुल अमारा की दीवारों से टकराती थी, मगर एक मर्तबा हातिफे गैबी की सदा आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी, इत्मीनान नफ्स के मालिक पलट जा अपने रब की तरफ। हुसैन ने अपनी तलवार नियाम में रखी, कहीं से तीर चले, कहीं से तबर चले, कहीं से खंजर चला, जिनके पास कुछ न था वो अपनी झोलियों से पत्थर उठा उठा कर सैयदा के मजलूम लाल रसूल के उस नवासे पे बरसाते जिसे रसूल अपनी ज़बान चुसाते थे, जिसे अपने कांधे पे बिठा के ईदगाह तक ले गए थे। वो हुसैन पुश्ते सुलजनाब पे डगमगा रहा था। एक मर्तबा वो आलम हुआ कि फुरात का पानी नैसों उछलने लगा। हुसैन की दुखियारी बहन दरे खैमा पा गई कि ज़मीन करबला नाश क्यों रही है। क्या देखा कि शिमर के हाथों में मेरे भैया का खंजर, भैया का सर है और खंजर लहरा रहा है। आवाज दी ज़ैनब ने, ए शिमरे बेहया, मेरा माजाया बेकसूर है। अज़ादारान ईमान, ये आशूर का दिन गुजर गया। जनाब ज़ैनब के लिए रवायत है कि मख्तल में आई, अब तक हुसैन ने एक एक लाशे को उठाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया था। भाई का लाशा ज़ैनब ने यूं उठाया कि उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक ज़ैनब की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अभी ज़ैनब ने हुसैन को उठाया और रखा ही था कि मुड़कर खैमे की तरफ देखा तो खैमों में आग लग चुकी है, दरें छूली जा रही है, असबाब लूटे जा रहे हैं। अज़ादारों, ये तो हो गया आशूर का दिन, शाम गरीबा का दिन, मगर 11 मुहर्रम आई। आज 12 मुहर्रम में है अपना, 11 मुहर्रम में सुल्ह की इंतहा नहीं हो गई, बल्कि यजीद और यजीदियों ने हुसैन के जो अहले हरम थे, छोटे छोटे बच्चे थे, खवातीन थी, एक रस्सी में 12 कली, जिसमें 4 बरस की हुसैन की यतीमा। अजीब व गरीब आलम है। अज़ादारों, रसूलुल्लाह के एक सहाबी थे जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी था। इन्हें मदीने से रबज़ा सज़ा में भेजा गया था और जानते अकेले सहाबी थे, इनका कोई नहीं था कोई। अबू ज़र गफ़ारी, इनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कमसिन बच्ची, वो अपने बाबा से कैसे अलग होती, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अबू ज़र जब रबज़ा जाने लगे तो पूरा रास्ता रेत का रास्ता है, रेगिस्तान है, मदीने से रबज़ा। इनको भेज दिया गया, ऊंट पर बिठा दिया गया, बच्ची साथ है, और कहा अबू ज़र तुम्हारा सामान, खाना पीना तुम्हारे ऊंट पर दान कर दिया गया है। अब जब रास्ते में भूख और प्यास की शिद्दत में सताया तो सामान्य सफर खोला तो उसके अंदर सिवाय रेत के कुछ न था। अबू ज़र पर प्यास का गलबा, बच्ची पर प्यास का गलबा, रास्ता तय करते रहे, अबू ज़र तय करते रहे। अबू ज़र के चेहरे का रंग देखा बच्ची ने तो हैरान और परेशान होकर रोने लगी। और अल्लाह तारीख ने लिखा है कि अबू ज़र गफ़ारी जो रसूल के बुजुर्ग सहाबी थे, रास्ते में रबज़ा के उनका ये आलम हो गया था कि गोश्त ने हड्डियां छोड़ दी थी। क्यों? रबज़ा भेजने से पहले इन्हें शाम से मदीना इस तरह बुलाया गया था कि बेकजावा नाका था और दिन रात लेके दौड़ने वाला दौड़ रहा था। जब रास्ते में अबू ज़र की बच्ची को जब ये एहसास होने लगा कि मेरा बाबा दुनिया में न रहेगा, तो बाबा से तड़प तड़प के रो के वो बच्ची कहती है, बाबा अगर आप न रहे तो वीरान बन में रेत के सहरा में मेरा कौन होगा। अबू ज़र ने अपनी बच्ची को सीने से लगा के कहा, ए मेरी लाडली घबराना नहीं, मेरे रसूल ने कहा है, मेरे सच्चे रसूल का वादा है कि एक सहाबी रसूल मालिक अश्तर का काफिला गुजरेगा। जब तुम्हें मौत आ जाए अबू ज़र तो काफिला गुजरेगा और वो काफिला तुम्हारी मैयत को दफनाएगा। वो काफिला
जानते हो क्या मिलता है? रवायत में मिलता है कि अबू ज़र की बच्ची ने देखा कि मेरे बाबा की मैयत रखी है और उधर से गर्द नमूदार हुई, उधर हाथों को नन्हे नन्हे उठाया और कहे काफिले वालों ये सहाबी रसूल अबू ज़र का लाश है। काफिले वाले आए, लाशे को बाद में देखा, पहले बच्ची को उठाकर कलेजे से लगा लिया, ये मेरी बच्ची गम न करना, ये मेरी बच्ची, तेरा बाबा मर गया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए मौजूद है, हम तुम्हारी तरबियत करेंगे, हम तुम्हारी परवरिश करेंगे। अज़ादारों, मेरा चौथा इमाम जनाब सकीना को ये कहानी सुनाया करता था। जब सकीना रोती रास्ते में, मेरा इमाम ये कहानी सुनाता था। और जब 11 मुहर्रम की सुबह को जनाब सैयद सज्जाद के पास हथकड़ियां और बेड़ियां लेकर अशकिया आए और ताज़ियाने लगाकर हथकड़ियां और बेड़ियां पिरा दी, तो कहा ये बताओ तुम्हारी बहन सकीना कहाँ है? कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी सकीना मेरे बाबा के लाशे पे गई होगी। सैयद सज्जाद को लेकर अशकिया हुसैन के लाशे की तरफ आए। सकीना को जबरदस्ती खींचकर बाप के लाशे से जुदा किया गया। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना कहा मान लो वरना भाई को ताज़ियाने लगाए जाएंगे। सकीना वही ठहर गई। कहा सकीना उठो, हमारा काफिला आगे जाएगा। एक मरतबा जनाब सकीना ने वही कहानी दोहरा दी। ए भैया आप ही कहते थे ना कि अबू ज़र गफ़ारी की बच्ची ने अबू ज़र का लाशा रास्ते में रखकर फरियाद की थी, एक काफिला आया था, मैं भी अपने बाबा के लाशे को लेकर नजफ के रास्ते में रख दूंगी, कोई काफिला गुजरेगा, कहूंगी ये काफिले वालों, ये नवासे रसूल हुसैन मज़लूम, हुसैन गरीब का लाशा है। सकीना को सैयद सज्जाद ने उठाया, सीने से लगाया, ए सकीना चलो काफिला आगे जाएगा, मेरा बाबा करबला के मैदान में बेगोरो कफन रहेगा। उठो सकीना, शाम का तेरा जिंदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मातम हुसैन। रोशन करके आग बातिल के कलेजे में लगा देते हैं, बिदअते कुफ्र का मंसूब झुलस जाता है, झूम कर नारे है जो लगा देते हैं, और किसी में है उठा दे तो जवाब होता है। मुनकिरे परचम अब्बास की हालत ये है, आग दिल में लगी चेहरा क्यों धुआं होता है, उन पे कहता है अलम तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम। सुन ले चैलेंज मेरा सारे जमाने वाले, मिट गए मातम सरवर को मिटांचल पर को उठाने वाले, अर्श ऊंचा है अलम, तेरा 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 ऊंचा है अलम। जब कभी आज़ा खाना है रम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा। इतनी मुहर्रम में बढ़ा देती है, फिर भी बढ़ती है रकम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम। कहते हैं जो गम सरवर तुम्हें क्या देता है, दाग दामन से गुनाहों के मिटा देता है, जिसको माबूद बुलंदी से गिरा देता है। चाहे अलम, तेरा ऊंचा है अलम, तेरा ऊंचा है अलम। परचमे हज़रत अब्बास का सहन, तेरा ऊंचा है अलम। अब हम पिया नाज़िर चला है मौला, मिस्र है रही लड़ने में सफाई मौला, यूं तो
بدر لے گئے بانی جفا بے کفن لاش ہے بے سر ہے